Hello everyone and my dear students. Welcome you all in Saraswat International Academy again. Okay, so in previous lecture or in previous week video we had completed question number 1, question number 2 in your exercise 5.3, right? So now in this video today we are going to start this question number 3 in your exercise 5.3, right? So before we are going to start this exercise or before we are going to start this sum, you have to know guys, आप लोग को मालूम होना चाहिए फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ द एंड टर्म्स, बराबर। एंड टर्म्स जो होती है उसका सम कैसे फाइंड करते हैं। सो आप लोग के पास यहाँ पे फॉर्मूलाज में लिख देता हूँ, बराबर। यू जस्ट सी गाइज, okay, first of all, how to find an? As you know the formula, like a plus n minus 1 into d. You know the formula, right? An is equal to a plus n minus 1 into d. Okay, so now moving to the sum of n terms. आप लोग ये भी फॉर्मूला जानते हो, सम ऑफ n टर्म्स, कि हाउ टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, कैसे फाइंड करते हैं गाइस। सो यू नो द फॉर्मूला, ओके, यू नो द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू व्हाट? डू यू नो गाइस? Sn इज इक्वल टू व्हाट? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 into the bracket 2a plus n minus 1 into d, okay? And you also know the second formula to find the sum of n terms, okay? Sum of what? n terms. कैसे फाइंड करते हैं sum of n terms? If last term is given, if the last term is given, अगर last term आप लोग को sum में given होता है तो आप लोग Sn कैसे फाइंड करते हो? So you know the formula n upon 2 into bracket what? A plus L. Okay, so here we have these three formulas, right? So हम लोग ये formulas use करेंगे in this sum, right? हम लोग यही formula use करने वाले हैं. So listen, here in your third sum in an AP given that a is equal to 5, okay, value of a is equal to 5, d is equal to 3. As you know what is a? A is your first term. D is means what? It's a common difference, guys. Okay, it's a common difference. Okay, and one more thing is given, that is an. Okay, that is an is equal to 50. You just see. Okay, an is equal to what? An is equal to 50, and we have to find n and Sn. हम लोग को n भी find करना है and also we have to find the Sn. ओके, सो सी गाइज, अगर एन फाइंड करना है तो आप लोग ऑलवेज ये फर्स्ट फार्मूला यूज़ करो, या तो सुटेबल फार्मूला आप लोग को जो जैसा ठीक लगे। ओके, तो यू जस्ट सी गाइज कि फर्स्ट ऑफ ऑल हियर अगर मैं फर्स्ट फार्मूला यूज़ करूँ, ओके, आप लोग देखो, जैसे कि ए एन इज इक्वल टू, एज यू नो कि भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, व्हाट इज ए एन? ए एन इट्स 50. व्हाट इज ए इट्स 5. ये फॉर्मूला यूज करके क्या फायदा हो रहा है वो पहले देख लेते हैं, राइट? n minus 1 as it is, because we don't know the value of n. What is d? d it's 3. d it's 3, right? So 5 को ये साइड शिफ्ट करें, 5 shifted towards the left hand side, so we will get 50 minus 5 is equal to n minus 1 into 3, right? So what is 50 minus 5? 50 minus 5, it's 45 is equal to n minus 1 into 3. So therefore these 3 shifted left hand side, so we will get 45 upon 3 is equal to n minus 1, guys. Okay, what is 45 upon 3? It's 15 is equal to n minus 1. Okay, so minus 1 को अगर ये साइड शिफ्ट करूँ तो क्या होगा? 15 plus 1 is equal to n. So this is not your value of n, it's 15 plus 1, so 15 plus 1 is 16 is equal to n. So this is your value of n, guys. तो ये फॉर्मूला यूज करके मुझे n की वैल्यू मिल रही है, गाइज। ओके, सो नाउ आप लोग का जो पहली चीज फाइंड करनी थी n, we will get. Okay, here it is your n. So now moving to the Sn. Sn कैसे फाइंड करें? How to find Sn? You know the formula. Okay, see here last term is given. an means your last term. लिसन, ए एन को हम लोग एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट ए प्लस एल। क्यों ये फॉर्मूला यूज करें? क्योंकि लास्ट टर्म मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, दैट्स वाई।
So Sn is equal to what? N upon 2 into bracket A plus L. Okay, so N upon 2, you just see N is 16, so 16 upon 2 into the bracket A plus L. A की value है 5, value of A is 5. What is the value of L? L it's 50. Okay, so 2 8s are right, so 8 into 50 plus 5, it's 55. Okay, so 55 8s are कितना होगा guys? तो 8 5s are 40 and 40 means I think so it's 440 बराबर. 55 8s are it's 440 means आप लोग अगर ऐसे ना आप लोग को फाइंड करना है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो. इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? कैसे फाइंड किया वो? चलो, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम. सेकेंड वन. ओके चलो सेकेंड सम देखो. सेकेंड सम में क्या है? सो इन दैट सेकेंड वन हियर गिवन दैट a is equal to 7. a is equal to 7. Okay, a is given. A13 also given, like A13 is equal to 35 and we have to find D and S13. D and what? S13. Okay, तो ये दो चीज़ फाइंड करनी है. इट्स वेरी सिंपल गाइज, यू जस्ट सी. Okay, A13 is given, A is also given. So see A13 given है तो A13 के प्लेस पे हम लोग यूज कर सकते हैं A plus 12D. Okay, so therefore A13 is equal to 35. Okay, so what is A13? A13 के प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो we can write A plus 12D is equal to 35, right? Okay, here value of A is given, that is 7, so you just place or put the value of this A into the equation, into this equation. So here the value of A is 7 guys. Okay, 12D as it is, 35 as it is. Now this 7 shifted to right hand side, barabar, shifted towards the right hand side, so you will get 12D is equal to 35 minus 7, right? So 35 में से 7 minus करें, so D is therefore 12D is equal to 35 minus 7, it's 28. So therefore D is equal to what? 28 upon 12. Okay, what is 28? Means 28 को factorize करूँ तो 7 4s are, as you know very well, and 12 is what? 4 3s are 4 cancel, so remaining is 7 upon 3. This is your value of D. बराबर, आप लोग पीछे चेक कर लेना, that is D is equal to 7 upon 3. Now moving to next S13. S13 गाइस कैसे फाइंड करें? S13 के लिए भी फॉर्मूला यूज करो सेम, A plus L n upon 2 into bracket A plus L. Okay, what is the value of n? n की वैल्यू आप लोग के पास नहीं है, पर लिसन n यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे भी 13 ही रहेगा, बराबर. So 13 upon 2 into the bracket A plus L guys. Okay, what is A and what is L? A is 7 and C L it means what? It's your last term guys, and last term को A n बोलते हैं, पर हम लोग S13 फाइंड कर रहे हैं तो at that time what? A13. Okay, A13 की वैल्यू वहाँ पे डाल दो. चलो, ये आप लोग का L होगा गाइस. ओके, सो 35 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो. ओके, सो 13 upon 2 and 35 plus 7 it's 42, so 2 21s are, so your answer is 13 into 21. चलो 21 into 13 हम लोग काउंट कर ले. 0 1 1s are 1, 1 2s are 2, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, so answer is 273. Okay, so your answer is what? 273. आई होप कि आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि भाई कैसे करते हैं ये सम. ठीक है, सो 5.3 का ये जो सेकेंड सम था आप लोग को क्लियर हुआ गाइस? चलो, सो लेट मी चेक द आंसर कि भाई आंसर इज प्रॉपर और नॉट. 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड जस्ट 1 minute. Yeah, this one is your question number 3, second one, question number 3. Okay, second one, it's perfect. Okay, so now moving to the third one guys.
moving to the third one, you just see. Sorry. देखो गाइज, आप लोग आंसर ये फॉर्मूलाज जो लिखे हैं बाजू में वो ऑब्जर्व करते रहना, बराबर। फॉर्मूला मेन है। चलो, तो थर्ड वन, मूविंग टू द थर्ड वन, थर्ड नंबर सम। गिवन दैट A12 इज इक्वल टू 37, A12 इज इक्वल टू 37, राइट। A12 is equal to 37, B is equal to 3, and what we have to find? A and S12, A and S12, okay, that we have to find. चलो, it's very simple guys, let me check, let me solve, बराबर। A12 is equal to 37 guys, A12 is equal to 37, it's given, बराबर। in your example, what is A12 means? formula to find A12, it's A plus 11D guys, okay, A plus 11D is equal to 37, right? So therefore A as it is, 11 as it is, what is the value of D? It's 3 is equal to 37, so therefore A plus 33 is equal to 37, 11 3s are 33, right? Now 33 को शिफ्ट करें ये साइड, तो इट्स माइनस 37 माइनस 33, सो देयरफॉर A इज इक्वल टू व्हाट? 37 माइनस 33, इट्स व्हाट? इट्स 4 गाइस। चलो, तो A की वैल्यू आप लोग को मिल गई जो हम लोग को फाइंड करना था, बराबर। चलो, देन आफ्टर वी हैव टू फाइंड S12 एंड यू नो द फॉर्मूला, ओके, n/2 इंटू ब्रैकेट व्हाट? A प्लस L। और देखो, एक चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, n की जगह पे 12 डाल देता हूँ यहाँ पे, बराबर। सो 12, A इज व्हाट? सी लिसन, A एज इट इज, एंड L के जगह पे मैं A12 डाल देता हूँ, ओके। जब भी आप लोग S12 फाइंड करो तो यहाँ पे भी A12 आएगा, ओके। सो 12/2 मीन्स 2 6 गाइस, सो 6 इज रिमेनिंग, एंड इनटू ब्रैकेट A plus A12, what is A it's 4, and what is your A12? A12 it's 37, right? So your answer is 6 into 37 plus 4 करें, so it's 41, so 6 1s are 6 and 6 4s are 24, बराबर। so your answer is 246 guys। कैसे कर रहे हैं वो आप लोग को क्लियर हो रहा है? चलो, तो आंसर भी चेक कर लेते हैं पीछे। 5.3 एक्सरसाइज एंड द सम नंबर थर्ड वन, A4 and S12 246, right? So now moving to the next sum, fourth one. Okay, so fourth one, you just see guys, fourth one is very simple. Okay, see, given that A3 is equal to 15, देखो A3 की वैल्यू 15 है, राइट। S10 is 125, S10 is equal to 125, okay, and we have to find D and A10, D फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है A10, ओके। चलो, वेरी सिंपल गाइज, यू जस्ट सी, जो चीज़ यहाँ पे गाइज गिवन होती है उसमें से ही आप लोग कुछ फाइंड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे A3 इज गिवन, A3 इट्स 15 गाइज, ओके। तो A3 की जगह पे मैं क्या प्लेस करूँ? A plus 2D इज इक्वल टू 15, राइट। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। आप लोग यहाँ पे छोड़ सकते हो बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ A और D। A और D की वैल्यू होती तो हम लोग कुछ फाइंड कर सकते थे, पर यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं फाइंड कर सकते, बराबर। चलो, तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड नाउ मूविंग टू दी S10 गाइज, ओके। S10 की फॉर्मूला क्या डाले बोलो? n/2 मीन्स n/2 एज इट इज 2A प्लस n-1 इंटू D। क्यों यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करें? बिकॉज वी डोंट नो द लास्ट वैल्यू,
मीन्स लास्ट टर्म a10 भी फाइंड करना है हम लोग को, तो वो अभी छोड़ देते हैं। चलो यहाँ पे 10/2 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, डोंट नो, बराबर। यहाँ पे देखो 10 - 1 तो 9d and 2 5s are, okay, so remaining is 5 into bracket 2a plus 9d, okay। as 10 की वैल्यू कितनी है 125, तो 125 and over here 125। अब ये 5 को हम लोग ये साइड शिफ्ट कर दे तो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 125/5 इज इक्वल टू 2a plus 9d, okay, so 5 25s are, okay, so your answer is 2a plus 9d is equal to 25। guys, this is your second equation, okay। हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस हो गए, एक है a plus 2d is equal to 15, the first equation is what, a plus 2d is equal to 15, this is your first equation, right। then second equation is 2a plus 9d is equal to 25, 2a plus 9d is equal to 25, okay। देखो यहाँ पे गाइस कोफिशिएंट आप लोग देख सकते हो, a के कोफिशिएंट ऊपर 1 है नीचे 2 है, यहाँ पे d2 है एंड d9 है, तो कैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ के यहाँ पे कोफिशिएंट को सेम करोगे, बराबर। कोफिशिएंट को कैसे सेम करना है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आप लोग का सेकेंड इक्वेशन है। देखो फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे मुझे 2 है तो यहाँ पे भी 2 हम लोग डाल सकते हैं, ला सकते हैं। कैसे लाए, तो भाई 2 मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई बाई 2, ओके। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाई 2, चलो 2 मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू दिस a, 2a, 2 2s are 4d and 15 2s are 30। now this is your first equation, okay। चलो सेम वे 2a plus 9d is equal to 25, this is your second equation, ओके। जैसे आप लोग को मैंने एलिमिनेशन मेथड में एक्सप्लेन किया था कि एक बार कोफिशिएंट सेम हो जाए तो यू हैव टू चेंज द साइन आफ्टर दैट, बराबर। सो यहाँ पे माइनस माइनस एंड माइनस, सो 2a - 2a बोथ कैंसल, सो रिमेनिंग 4 - 9 इट्स -5d, ओके। 30 - 25 इट्स sorry it's +5, okay। 30 - 25 it's 5, so therefore d is equal to 5/5, 5 cancel, so your value of d it's -1। आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कैसे सॉल्व करना है, बराबर। अब ये d की वैल्यू एक आध इक्वेशन में डाल दो, ये इक्वेशन में हम लोग डाल देते तो थोड़ा इजी रहेगा, बराबर। चलो यू जस्ट सी ओवर हियर फर्स्ट इक्वेशन इज a plus 2d is equal to 15, so from इक्वेशन नंबर 1 we get, इक्वेशन नंबर 1 पे से हम लोग को कुछ ऐसा मिल रहा है लाइक a plus 2d is equal to 15, okay। so therefore what is the value of a, don't know, that we have to find, बराबर। a की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 2d means 2 as it is and d it's -1 is equal to 15, d it's -1, so therefore a plus minus is minus, 2 1s it's 2 is equal to 15। अब ये 2 को ये साइड ले जाऊँ तो क्या होगा, it's 15 plus 2 and it's 17, बराबर गाइज। ये आप लोग की a की वैल्यू हो गई, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, एक्चुअली व्हाट वी हैव टू फाइंड इन लास्ट, तो भाई वी हैव टू फाइंड a10, सो यू नो द फॉर्मूला a10 कैसे फाइंड कर सकते हैं गाइज, तो भाई a plus 9d, okay। so what is the value of a, it's 17, 9 as it is, what is d, it's -1, so your answer is 17 plus minus 9 1s are 9, so 17 - 9 it's 8, okay। तो गाइज ऐसे फाइंड करते हैं, आप लोग को क्लियर हो रहा है, चलो सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम गाइज, ओके। फोर्थ वन कंप्लीटेड, नाउ मूविंग टू फिफ्थ वन। sorry, So moving to fifth number sum.
फिफ्थ नंबर सम में क्या है कि d इज इक्वल टू 5, ओके, S10 इज इक्वल टू S9 is equal to 75, okay, D is equal to 5, S9 is equal to 75, and we have to find A and A9, बराबर, A and A9 that we have to find guys. चलो see, starting from, see listen, S9 is given, so S9 से ही start करते हैं, बराबर, और कुछ D given है आप लोग के सम में, पर हम लोग स्टार्टिंग तो S9 से ही करेंगे. S9 इज इक्वल टू, यू नो द फॉर्मूला गाइस, बराबर, n/2 इंटू ब्रैकेट A प्लस 2A प्लस n-1 इंटू डी, बिकॉज ये फॉर्मूला ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है. ओके, सो देयरफॉर हियर S9 यू नो इट्स 75, n मीन्स 9/2, 2A एज इट इज़ 9 minus 1 it's 8D गाइस. ओके, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग गाइस फोकस कर सकते हो कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग. सो देयरफॉर 75 इज इक्वल टू 9/2, यहाँ से 2 अगर कॉमन निकाल लूँ तो ब्रैकेट में बचेगा A प्लस 4D. ओके, यहाँ से 2 हम लोग ने कॉमन निकाल लिया तो 2 बोथ कैंसल. सो देयरफॉर 75 इज इक्वल टू, देखो ये अपना एक इक्वेशन बनेगा. यहाँ पे देखो d की वैल्यू आप लोग के पास अवेलेबल है, d इज इट्स 5, तो यहाँ पे प्लेस कर दो. चलो, a एज इट इज़ 4 एंड d की वैल्यू आप लोग 5 देख रहे हो. सो 75 एज इट इज़ a प्लस 4 5 इट्स 20. ओके गाइज, एक मिस्टेक हम लोग ने करी है, यहाँ पे 9 हम लोग भूल गए, बराबर. सो 9, दिस इज योर 9, यहाँ पे भी मैं 9 मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ओके, चलो अभी क्या करना है, 9/2 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 8D, ओके, 2 कॉमन, 2 कैंसल, 9 एज इट इज़, A प्लस 4 5 इट्स 20. अभी आप लोग ये 9 को नीचे ले आओ. ओके, देखो तो आंसर मिलेगा 75/9 इज इक्वल टू A प्लस 20. ओके, A प्लस 20, राइट. 75/9 तो इट्स नॉट पॉसिबल गाइज. एक काम करते हैं, 20 को ये साइड ले आता हूँ. So 75/9 minus 20 is equal to A. ओके, चलो 75 1 ज़ा 75, 9 2 ज़ा 18/9 is equal to A. ओके, सो A is equal to -105/9. ये आप लोग की A की वैल्यू हो गई गाइस, बराबर. अगर ये कैंसलेशन पॉसिबल है तो यू कैन डू, बराबर, लाइक देखो ये 7 इंटू 3 इंटू 5, बराबर, एंड 3 इंटू 3, सो 3 बोथ कैंसल. सो योर आंसर इज व्हाट, -35/3. दिस इज योर एक्चुअल वैल्यू ऑफ A, बराबर. अभी ये जो A की वैल्यू हो गई है, मिल गई है आप लोग को, अभी आप लोग को फाइंड करना है A9. ओके, सो देयरफॉर यू नो द फॉर्मूला, A9 इज इक्वल टू व्हाट, A प्लस 8D. okay, what is the value of A? It's -35/3 plus 8 as it is. What is D? D it's 5. okay, so -35/3 and 8 5 it's 40/1. so LCM, बराबर, 35 1 35, 3 means into 40 it's 120/3. सो 120 अगर उसमें से 35 माइनस करें सो आप लोग को मिलेगा आंसर 85/3. ओके, 85/3, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर A9. ओके गाइज, रिड्यूस फॉर्म तो पॉसिबल नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो कि कैसे फाइंड किया, बराबर, अब तक. चलो, सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट सम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर तो बराबर है. चलो, इसके बाद कौन सा सम करें, 6th वन. Okay, so moving to 6 number sum. Okay, 6 number sum में क्या है, तो A is equal to 2, D is equal to 8. Okay, A is equal to 2, D is equal to 8. Okay, then Sn is equal to 90.
and we have to find n and a n. n फाइंड करना है, a n भी फाइंड करना है। चलो फटाफट देख लेते हैं गाइस, बराबर। सी हियर Sn is given, a is given, d is given। ओके चलो ट्राई तो करें। यू नो द फॉर्मूला n/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके Sn इज 90 गाइस, Sn की जगह पे 90 प्लेस कर रहा हूँ, n/2 एज इट इज 2a, a इट्स 2, n माइनस 1 एज इट इज, d इट्स 8। ओके तो देखो 90 एज इट इज। देखो गाइज यहाँ से आप लोग 2 और 2 कॉमन निकाल सकते हो, बराबर। सो n/2 इंटू 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक 2 बचेगा, n माइनस 1 और यहाँ पे बच जाएगा 4, 2 2 कैंसल। सो 90 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2 प्लस, देखो 4 इंटू दिस n, 4n, 4 1 जा इट्स माइनस 4। सो 90 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2 प्लस, सॉरी not 2 plus, it's 4n। see 4n is remaining and plus 2 minus 4, it's minus 2 guys। ओके देखो अभी भी यहाँ से 2 कॉमन हम लोग ले सकते हैं, तो 90 इज इक्वल टू 2n इंटू ब्रैकेट, यहाँ से 2 कॉमन ले रहे हैं हम लोग, तो बचेगा -1। ओके सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट। सी ये 2 को हम लोग नीचे ले जाए, यहाँ पे हर एक में देयरफॉर साइन इट्स कंपलसरी गाइज। ओके 2 को नीचे ले जाओ तो क्या बनेगा, 90/2 इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट 2n माइनस 1। ओके चलो सो इट्स 45 गाइज, n and 2n इट्स 2n स्क्वायर माइनस n 1 जा n। अब ये 45 को गाइज ये साइड ले जाओ तो 0 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45। ओके चलो देखो अभी यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग मिडल टर्म वाली मैथड यूज़ करेंगे, बिकॉज दिस वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी कैन फेज ओवर हियर। सो यहाँ पे 45 और 2, सी यहाँ पे आप लोग को रफ वर्क दिखाता हूँ, आप लोग का होगा 90। यू जस्ट सी कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो -90 एंड यू विल गेट मिडल टर्म इट्स सी n के साथ -1 है तो -1। So 10 9s are 90। Now this minus sign is applied to bigger number and minus plus। तो देख लो ये आप लोग का स्प्लिट आप लोग ने कर दिया। So 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 2 की पैर बना दो तो इसमें से 2n कॉमन, सो रिमेनिंग n माइनस 5। ओके ओवर हियर 9 कॉमन, सो रिमेनिंग इज n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। So n minus 5 common and 2n plus 9 is equal to 0। तो n minus 5 is equal to 0, so n is equal to 5 guys। ओके और देखो 2n plus 9 is equal to 0, so 2n is equal to -9, so n is equal to -9/2। देखो ऐसा तो कोई मीन्स टर्म होती नहीं है -9/2, बराबर। सो n is equal to 5 इज योर करेक्ट आंसर। चलो सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, हम लोग को क्या फाइंड करना है, an। चलो an भी फाइंड कर लेते हैं। यू नो दी फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज a इट्स 2। देखो आप लोग ने n की वैल्यू भी फाइंड करी है, हम लोग ने फाइंड करी है 5 माइनस 1 एंड व्हाट इज d इट्स 8। ओके सो 2 प्लस 5 माइनस 1 इट्स 4 इंटू 8, सो 2 प्लस 8 4 जा 32। ओके इट वॉज 32, सो योर आंसर इज 34 गाइस। ओके तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे सम करते हैं। ओके सो नाउ वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक जो भी है, नेक्स्ट सम है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके गाइस सो बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू ऑल ऑफ यू।